Good morning, everyone. Kindly don't share your screen or your video. Kindly stop your video and kindly don't share your screen. And I have muted everyone. And kindly change your name. There is one person whose mobile is Galaxy M30s. So kindly change your name into your name, screen name into your name. So there is an option to. So just click your name, then you will be able to change your name. So kindly do that. And for some of the people, your audio has not been joined. So what you need to do is, so there is an option on the left hand side. You just click that, then you will be able to join using the audio as well.
Kindly stop your video. If we all start video call, then the bandwidth will increase. We will not have a better session. So we don't have to have a video discussion. So kindly turn off your video. So there is an option to stop your video. So kindly stop it. And for connecting the audio, so you have to click on the left hand side icon. At the bottom, you will see uh, एक आइकन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका ऑडियो ज्वाइन हो जाएगा, आप मेरा आवाज़ सुन सकते हैं। सो मैंने चैट मैसेज में भी डाला हुआ है, फिर भी कुछ लोगों के ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है। सो उनको आप थोड़ा सा मदद कीजिएगा। लेफ्ट आपके मोबाइल फ़ोन में नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक आइकन आएगा, उस पर दबाएंगे, फिर आपका ऑडियो चालू हो जाएगा। मिस्टर विक्की जायसवाल, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, कनेक्ट हो गया। मोटो जी प्ले करके किसी का है, उनका ऑडियो अभी कनेक्ट हो रहा है। लेनोवो का अपर्णा दास, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। सो आप अपना फ़ोन पे नीचे एक आइकन आएगा लेफ्ट साइड में, फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर में, उस पर दबाएंगे, फिर आपका ऑडियो चालू हो जाएगा, फिर आप मेरा सुन सकते हैं। सब अपना वीडियो भी बंद करके रखिएगा, फिर आपका बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सो अब अभी भी लोग ज्वाइन करना है अभी, और 2 मिनट और रुकेंगे, फिर हम सेशन चालू करेंगे।
Mr. Robin, I have unmuted your mic. We will wait for a minute and then we will start the session. If you want to share something with your students and faculty members, kindly talk to that. और कुछ लोगों के अभी भी ये ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, वो हमारा सेशन प्रेजेंटेशन को सुन नहीं पाएंगे. श्यामली कुमारी, Vivo 1907, वकील कुमार यादव, Galaxy M30s, AFA65C16, इन 4-5 लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है. सो उनको थोड़ा सा ऑडियो कनेक्ट करने के लिए कह दीजिएगा. ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ইন্টাৰনেটৰ সহায়ত মোবাইল টেকনলজি আৰু কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি ভাৰতৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো ঠাইৰ পৰা নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া ইউজ কৰিব পাৰে। શિક્ષણ પદ્ધતિ છે, વ્યવહારિક જ્ઞાન છે, થીસિસ છે, ડિઝર્ટેશન્સ છે. நாங்கள் இந்த தேசிய லைசன்ஸ் பயன்படுத்துவதனால இந்த நூலகத்தின் உள்ளடக்கத்தை எல்லோரும் இலவசமாக நாடு தழுவி பயன்படுத்தலாம்। আমাদের ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। The true success of a library lies with its users. Hence, I invite all of India to make use of this platform. I am National Digital Library of India. I am in National Digital Library of India. I am the National Digital Library of India. मैं National Digital Library of India. মই નેશનલ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી ઓફ ઇન્ડિયા। నేను నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా. હું છું નેશનલ ડિજિટલ લાઇબ્રરી ઓફ ઇન્ડિયા. நான் இந்தியாவின் தேசிய நூலகம். मी निरुपमा बावडेकर, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया आहे. I am National Digital Library of India. मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। আমি ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি।
Okay, so good morning, everyone. So now we will start the session. So हिंदी में बात करने में चलेगा ना? हिंदी में सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, सो मैं अभी सेशंस शुरू करने वाला हूँ. सेशन शुरू करने के पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ. NDLI क्यों है और इसका क्यों बनाया गया, ये सब छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड करके फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे. तो पहला है 2015 में. सो एक सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस, ऑल IITs, IIMs. सो नॉर्मली बजट से MHRD से थोड़ा सा बजट जाती है. सो उसमें हर लाइब्रेरी का बजट सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, लगभग 15 करोड़ से लेके 20-25 करोड़ तक हर इंस्टीट्यूशन का बजट जाता है. सो उसमें सबका रिसोर्सेस ऑलमोस्ट सेम है और हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग से सब्सक्रिप्शन, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते थे. और सो उस समय का गृह मंत्री, मिनिस्टर फॉर MHRD, सो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो पूछ रहे थे ये क्यों सारे इंस्टीट्यूशंस एक ही रिसोर्सेस को खरीद रहे हैं ऑलमोस्ट सेम रेट, और हमें क्यों ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म में सारों रिसोर्स को लेके हम सारे इंडिया में कितने भी इंस्टीट्यूशन सबका एक साथ दे सकते हैं. सो उसी बैकग्राउंड के हिसाब से उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर पहले इसको लिख के आगे ले जाना, इस प्रपोजल को आगे ले जाना चाहते थे. सो इन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया था. उस समय इसका कंसीव किया गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का. सो सबको एक रिक्वेस्ट है, सब अपना वीडियो को स्टॉप करें, बंद करके रखें, ताकि हम सब ठीक से सुन पाएँ और प्रेजेंटेशन को अच्छे से देख पाएँ. सो आप थोड़ा सा अपना स्क्रीन और वीडियो को दोनों शेयर मत कीजिएगा. और फिर IIT खड़गपुर ने 2016 में पहली बार नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को एक पायलट के प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च किया गया. उस समय इनिशियली काफ़ी कम रिसोर्सेज थे और काफ़ी कम यूजर्स भी थे. फिर हमने धीरे धीरे रिसोर्सेज को बढ़ाया और उसके बाद धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा होते रहे, और आज के समय पे हमारे पास लगभग 4 करोड़ 70-80 लाख के आसपास रिसोर्सेस अवेलेबल है. लगभग 55 लाख यूजर्स भी आज के समय पे हैं, हमारे पोर्टल पे यूज़ कर रहे हैं. तो ये हर दिन बढ़ते जा रहा है. और हम एक और चीज़ हमने भी देखा, कितने भी इंस्टीट्यूट हम जा रहे हैं उसमें एक मेजर समस्या आ रही है, वो है लोगों तो नाम तो सुने हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का नाम तो सुने हैं और देखा भी है, लेकिन उन्होंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है. फिर हमने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारे लोगों से, स्टेक होल्डर से बातचीत किया है. फिर हमें पता चला ये हमारा भी थोड़ा सा कमियां हैं. हमने देखा, फिर हमने सोचा. पहले हमारा काम था ये NDLA को सब लोगों के पास ले जाना है और उनको पहले NDLA क्या है, इसमें क्या क्या रिसोर्सेस हैं और इसमें कैसे इसको यूज़ करना है करके हमें लोगों के पास ले जाके फिर हम लोगों से एक्सपेक्ट करें इसको यूज़ करने के लिए. वैसे ही हमने उसके तरफ बढ़ा है. अभी तक हमने लगभग कुछ 60 के आसपास फेस टू फेस सेशंस किए हुए हैं और उसमें काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है, और अभी हमें बाकी सारे इंस्टीट्यूट के पास पहुंचना है. आज हमें एक मौका मिला है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के आप सब रिसर्चर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, आप सबसे एक बार बातचीत करने का. विद दिस बैकग्राउंड हम सेशन शुरू करेंगे. मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ.
सबको ये मेरा प्रेजेंटेशन दिख रही है? एक बार दिख रही है तो मुझे चैट में मैसेज कर दीजिएगा, यस विजिबल। मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा। ओके, सो मैं शुरू करता हूँ। सो ऑब्जेक्टिव, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, हु इज दिस फॉर, एनडीएलए किसके लिए है और क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, और एनडीएलए को कैसे एक्सेस करना है, और गूगल और एनडीएलए को क्या डिफरेंस है, और एनडीएलए क्लब करके अभी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, उसको कैसे लागू करना है अपने इंस्टीट्यूट में। यही हम 4 चीज़ हमें अभी हम देखेंगे। सो अभी के समय पे हमारा देश का एक मेजर ज़रूरत है क्वालिटी नॉलेज रिसोर्सेज, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन। उनका क्वालिटी नॉलेज रिसोर्स चाहिए, एनी वन एनी टाइम एनीवेयर, सबको चाहिए, हर समय चाहिए और कहीं भी चाहिए। सो इनको ये रिक्वायरमेंट है। सो मैं इस बैकग्राउंड में मैं डिजिटल लाइब्रेरी का एक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। सो मैं अपना एमफिल और पीएचडी एक अच्छा इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया में कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स में किया हुआ है। सो वहाँ पे लाइब्रेरीज 24/7 ओपन है, हर समय आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। वहाँ पे हमें 3 मेजर इश्यूज फेस किए हुए हैं। पहला इशू है, सो वहाँ पे कोई भी मेजर अच्छा रिसोर्सेस होंगे, बुक्स होंगे और कोई भी अच्छा आर्टिकल्स होंगे, सो मैक्सिमम फैकल्टी के पास हो जाती है। फैकल्टी से इशू करके रख देते हैं और वो 2-3 बार रिन्यू करते रहेंगे और बच्चों के पास किताब पहुंचते नहीं है। फिर बच्चे उनके पास जाके फोटोकॉपी लेके फिर इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा एक इशू होता है, आप लाइब्रेरी में जाओ, वो पैक में दिखता है और क्लासिफिकेशन में वो एक सेक्शन में रखते हैं, एक रैक में जाके देखेंगे, एक्सेप्ट वो एक किताब छोड़ के बाकी सब किताब मिलेगा। सो कोई अच्छा बच्चा होगा, वो कहीं उस रिसोर्स को, बुक को, किताब को कहीं पे छुपा के रखे होंगे। और तीसरा एक इशू होगा, वो पैक में भी होंगे, रैक में भी होंगे, हम किताब को निकाल देखेंगे, वो किस चैप्टर हमने प्रिस्क्राइब किया होगा, सिर्फ वो चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स वहाँ पे रहेंगे। और इसके अलावा सो हम कितने भी इंस्टीट्यूट पे गए हुए हैं, वहाँ पे पिछले 5 से 7 साल के बीच में लाइब्रेरी का बजट काफ़ी कम किया हो गया, काफ़ी कम हो गया। सो लगभग 1/10 ऑफ द बजट काफ़ी कम हो गया। सो इस बैकग्राउंड को रख के आप डिजिटल लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस देखेंगे। सो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को आप कभी भी कहीं भी कितने लोग भी एक ही रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रिसोर्स उसमें डाल के रख सकते हैं, राइट। और इसका आपको अभी एनडीएलए का कोई भी रिसोर्स को पे करके यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। आप सारे रिसोर्सेज अपने मोबाइल फ़ोन और अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में बैठ के पढ़ सकते हैं बिना कोई पैसे का रिक्वायरमेंट के बिना। सो अभी हम देखेंगे एक पर्सपेक्टिव ऑफ एनडीएलए। सो इंडिया में सिर्फ कुछ ही स्टेट को छोड़ के, केरला, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों स्टेट को छोड़ के इधर लिटरेसी लेवल लगभग 85% से ऊपर है, 85 to 90% के ऊपर है। बाकी स्टेट्स आप देखेंगे इधर लिटरेसी लेवल काफ़ी कम है, लगभग लेस देन 75%। बिहार में तो आप देखेंगे लिटरेसी लेवल तो बिलो 70% 75% के नीचे ही है। सो इन स्टेट्स में आप एज पर 2011 सेंसस में देखेंगे, हर महीने 10 लाख बच्चे 18 उम्र हो रहे हैं और उनका रिक्वायरमेंट होता है, उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन देना है तो इंडिया को चाहिए 6 यूनिवर्सिटीज़ और 270 कॉलेजेस हर मंथ। और इतने सारे रिसोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग चाहिए होंगे 1 लाख करोड़ हर महीने इन्वेस्ट करके ये बनाएंगे। वो बेसिकली सस्टेनेबल नहीं रहेंगे क्योंकि बनाना आसान है, उसको सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। सो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा
काफ़ी सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स, अल्टरनेटिव सोल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशंस लिखा। सो उसमें स्वयं प्रभा, एनपीटेल, एनडीएलए, ये सब चीज़ एक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग रिसोर्स मटेरियल्स हैं। सो इसमें आप अपने एजुकेशनल एजुकेशनल ओके। सो अभी हम वापस शुरू करेंगे। सो एनडीएलआई देश के लिए इट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 19 जून 2018, 2018 में इसको देश को शाबित किया होगा। सो अभी हम देखेंगे एनडीएलआई किसके लिए। सो एनडीएलआई हैज रिसोर्सेज फॉर एवरीवन, starting from school going students, college going youths, professionals, academicians, researchers, entrepreneurs, lifelong learners. So ये resources हैं हर तरीके का लोगों के हिसाब से ये NDLI में resources available है। So NDLI basically है एक integrating platform। So हम खुद कोई कंटेंट बनाते नहीं हैं। So हम बेसिकली इंडिया में कितने भी, इंडिया और विदेश में कितने भी अच्छे एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट करके उनसे कितने भी ओपन नॉन कॉपीराइटेड एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं उसको हम इकट्ठा करके एनडीएलए में पेश करते हैं। सो अभी तक हम 251 पार्टनर्स के साथ हम कोलैबोरेट किए हुए हैं। सो यू नेम एनी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो हमारा कंटेंट कोलैबोरेटर है। फिर हम देखते हैं इसमें किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। सो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल नॉलेज के ऊपर 99 लाख के आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल है। फॉलोड बाई फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी 5 लाख, रिलीजन 2 लाख, सोशल साइंसेस 45 लाख, लैंग्वेज 8 लाख, नेचुरल साइंसेस एंड मैथमेटिक्स 83 लाख, टेक्नोलॉजी 1 crore, आर्ट्स, फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट्स 4.5 lakhs, literature and rhetoric 7.8 lakhs, history and geography 6.12 lakhs. So major content contributors हैं वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी 77 लाख इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और सरकार ने इनसे नेशनल लाइसेंसिंग लिया हुआ है। नेशनल लाइसेंसिंग का मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, सरकार ने इनको एक पैसा देके इनका कितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब इंडियन सिटीजन फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ सकते हैं। सो नॉर्मली आप इनके रिसोर्सेज खरीदना चाहोगे, एक इंस्टीट्यूशन में इन्होंने आई थिंक 35,000 से 45,000 के बीच में हर इंस्टीट्यूशन से सब्सक्रिप्शन फी लेके इनका कंटेंट देते हैं। ठीक है। सिमिलरली साउथ एशिया आर्काइव्स, सो इनका रिसोर्सेज होते हैं लगभग आई थिंक 75 लाख के आसपास कुछ इंस्टीट्यूट्स में खरीदे हुए हैं, और वो सारे रिसोर्सेस अभी एनडीएलआई यूजर्स का यूजफुल है। सो किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है वो अभी हम देखते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, और ऑडियो फाइल्स अवेलेबल हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, केस स्टडीज, स्टैम्प पेपर्स, असाइनमेंट्स, असेसमेंट, थीसिस, dissertations, you name any form of educational and knowledge resources, they are all available at NDLI. और major chunk of the resources are articles. Articles लगभग 2.95 crore resources होते हैं articles, followed by books 63 lakhs. और हमारे पास reports available हैं, notes, law acts, law judgments, technical reports, thesis 6 लाख के आसपास thesis available हैं, और video lectures 3.6 lakh available हैं। और एनडीएलए में आप कोई भी रिसोर्स सर्च करेंगे नीचे 3 आइकन आएगा। सो पहला आइकन दिखता है आपको एक्सेस ऑप्शन, किस तरीके का कंटेंट है ये। सो मैंने पहले आपको बताया 4 करोड़ 80 लाख के आसपास हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो उसमें से
लगभग 75%, 3.6 करोड़ के आसपास कंटेंट सारा फुल टेक्स्ट एक्सेस है, और ये सारे रिसोर्सेज आप फ्री ऑफ कास्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो उसमें आपको देखना होता है दो एक्सेस ऑप्शंस, एक तो ये लॉक खुला होता है ग्रीन कलर का लॉक, और दूसरा है एक रेक्टेंगल बॉक्स में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लिख के होते हैं, और ये दोनों आइकॉन आपको दिखता है, ये फुल टेक्स्ट है। फुल टेक्स्ट का मतलब है ये कंटेंट सारा बुक और सारा आर्टिकल आप डाउनलोड करके एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, और ये सेकेंड आइकॉन होता है लैंग्वेज, इंग्लिश, ENG का मतलब इंग्लिश। ये है किस तरह का कंटेंट है, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, ये आपको ये थर्ड आइकॉन से आपको दिख जाता है। सो अभी हम देखते हैं, मैंने पहले ही बताया, सो ओपन एंड NDLI कंटेंट होता है फुल टेक्स्ट एक्सेस। सो सारा कंटेंट आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। वैसे कंटेंट अभी लगभग 3.6 करोड़ के आसपास कंटेंट है, फुल टेक्स्ट कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं NDLI को कैसे यूज करना है। सो काफ़ी सिंपल है, आप गूगल में जाइएगा और कोई भी ब्राउज़र में जाइएगा, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कीजिएगा और आपका मोबाइल ब्राउज़र यूज़ कीजिएगा, उसमें जाके आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, पहला URL आएगा ndl.iitkgp.ac.in और दूसरा URL आ सकता है ndl.gov.in। ये दोनों URL हमारे इस पे चलता है, ये दोनों, आप कोई भी दोनों में कोई भी URL क्लिक करेंगे वो हमारा होम पेज पे ले जाएगा। यही हमारा होम पेज है, NDLI होम, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का होम पेज है। अभी ये कोरोना आने के बाद हमने कंटेंट को और हमारे टीम ने मिलके इस पे कंटेंट को और क्लासिफाई किया हुआ है, एजुकेशनल लेवल और एजुकेशनल डिसिप्लिन के हिसाब से हमने और डिवाइड किया हुआ है। सो अभी हम देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। सो कोई भी आप सर्च करना चाहते हैं, ऊपर एक सर्च का आइकन होता है, उस पर क्लिक करेंगे आपको सर्च बॉक्स आ जाती है। सो अभी मैं पहले सर्च किया हुआ है हिंदी लिटरेचर, इसमें आपको स्पेलिंग, बिना स्पेलिंग मिस्टेक को टाइप करके सर्च करनी है। ओके, सो फिर अब इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा। सपोज मुझे सिर्फ हिंदी में चाहिए सारा रिसोर्सेस, फिर मुझे जाके लैंग्वेज करके एक फिल्टर होता है, वहाँ पे जाके हिंदी टाइप करके हिंदी में चूज करेंगे। मुझे मिला है हिंदी लिटरेचर के ऊपर हिंदी लैंग्वेज पे 15,000 के आसपास रिसोर्सेस मिले हुए। ओके, सो ये लेफ्ट साइड में कितने भी दिखता है, ये सारे फिल्टर्स हैं। सो इसको यूज करके आप अपना रिजल्ट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। ये सारे फिल्टर्स, इंपॉर्टेंट फिल्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कितने फिल्टर्स अवेलेबल हैं। लेफ्ट साइड में एक्सेस रेस्ट्रिक्शन मैंने पहले बताया। सपोज आप इसमें इस पे क्लिक करके ओपन और NDLI चूज करेंगे, फिर आपको सारा फुल टेक्स्ट मिल जाएगा। फिर आथर का फिल्टर है, आप कोई भी आथर नाम डाल के कोई भी आथर आप चूज करेंगे वो आ जाएगा। सब्जेक्ट कैटेगरी मैंने पहले ही बताया, ये DDC टीओ डेसिमल क्लासिफिकेशन से हमने कंटेंट को क्लासीफाई करके रखा हुआ है, वो उस पर आप चूज करके यूज कर सकते हैं। और एजुकेशनल डिग्री, डिफिकल्टी लेवल, एजुकेशन लेवल, ये थोड़ा सा अभी माइनर बग्स हैं, इसको हमारा टीम ने फिक्स किया हुआ है, फिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद फाइल फॉर्मेट, लैंग्वेज, लर्निंग रिसोर्स टाइप और सोर्स। सो ये सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। और राइट हैंड साइड में भी एक कंटेंट टाइप का फिल्टर, रेडीमेड कंटेंट, आप सपोज टेक्स्ट रिसोर्स चाहते हैं, वीडियो रिसोर्स, ऑडियो फाइल्स और इमेज और प्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ उसमें जाके क्लिक करेंगे, सिर्फ उसी टाइप का कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो अभी हम दूसरा सर्च टॉपिक देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो मैंने डाला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और मैंने सब्जेक्ट कैटेगरी सिर्फ 2 चूज किया हुआ है, लैंग्वेज और लिटरेचर। ये दोनों सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर मुझे रिसोर्स चाहिए। मुझे मिला है लगभग 6,70,000 के आसपास मुझे रिसोर्सेस मिले हुए हैं। और मैंने तीसरा सर्च किया हुआ है कांति एंड पीस, और इसमें मुझे सिर्फ फुल टेक्स्ट चाहिए। सो मैंने क्या किया है, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में जाके सिर्फ ओपन और NDLI को चूज किया हुआ है। मुझे लगभग 22 लाख के आसपास रिसोर्सेस मिले हुए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया हुआ है मॉडर्न इंडिया। सो इसमें मैंने 2 फिल्टर्स लगा हुआ है, एक तो एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, उसमें ओपन एंड NDLI क्लिक करके मिला हुआ है, और सब्जेक्ट कैटेगरी हिस्ट्री। सो मुझे 20,000 के आसपास रिसोर्सेस मिला है ऑन
द टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर मैंने चूज किया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके एक टॉपिक को सर्च किया हुआ है, और इसमें मुझे सिर्फ वीडियो लेक्चर्स चाहिए और फुल टेक्स्ट। सो मैंने दो चीज़ किया हुआ है, एक तो एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में जाके ओपन एंड डीएलए क्लिक किया हुआ है, और राइट हैंड साइड में कंटेंट टाइप में जाके वीडियो क्लिक किया हुआ है। सो मुझे 1700 के आसपास रिसोर्सेस मिलेंगे। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। सो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में भी मैंने सब्जेक्ट कैटेगरी नेचुरल साइंसेस में क्लिक किया है, और सिर्फ वीडियो चाहिए। सो मुझे 1800 रिसोर्सेस 1800 रिसोर्सेस मिला हुआ है। फिर मैंने सर्च किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मुझे चाहिए सिर्फ रिसोर्सेज फ्रॉम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और MIT ओपन कोर्स पर। सो मुझे 251 रिसल्ट मिला है ऑन द टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसमें मैंने सिर्फ M.Tech डिग्री का कंटेंट चाहिए करके मैंने क्लिक किया है। मुझे 525 sorry, there is some connectivity issue here, so I'm restarting the slide. So मैंने नेक्स्ट टॉपिक किया हुआ है अलजेब्रा एंड कैलकुलस। सो अभी मैंने पहले ही आपको बताया कोरोना के समय पे हमने कंटेंट को और क्लासिफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल और एजुकेशनल डिसिप्लिन। सो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, कोरोना आउटब्रेक स्टडी फ्रॉम होम करके ये है, इस पर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, फिर आपको ये पॉपअप विंडो मिल जाएगा। सो इधर आप देख सकते हैं स्कूल का कंटेंट, यूजी इंजीनियरिंग, यूजी साइंस, यूजी अदर डिसिप्लिन्स, लैंग्वेज मैनेजमेंट, लॉ। सो सपोज आप यूजी साइंस पे क्लिक करेंगे, ये सारा चीज़ आ जाएगा, और यूजी अदर्स क्लिक करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का कंटेंट मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे कंटेंट को खोलना है इंडिया लेक पे। सपोज मैंने एक टॉपिक सर्च किया हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेल्स एंड मार्केटिंग करके एक टॉपिक मैंने सर्च किया। सपोज मुझे ये वाला रिसोर्स खोलना है, फिर मुझे क्या करना है, इस इधर जाके क्लिक करना है। सो इस पे क्लिक करेंगे, अभी ऊपर दो टैब्स मिलेंगे आपको। सो पहला टैब है कंटेंट और दूसरा टैब है मेटाडेटा। सो पहले आप मेटाडेटा पे क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा। सो मेटाडेटा इज नथिंग बट data about data. In crude way we call it as basic information about a resource. So अभी इस रिसोर्स का टाइटल है सेल्समैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट। ऑथर कौन है, सोर्स क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, पब्लिशर कौन है, फाइल फॉर्मेट क्या है, सब क्या क्या सब्जेक्ट डोमेन है, सब्जेक्ट कीवर्ड क्या है, लर्निंग रिसोर्स टाइप, ये सब चीज़ हम कहते हैं मेटाडेटा। अभी आपको इधर जाके देखना है ये फुल टेक्स्ट है कि सब्सक्राइब रिसोर्स है, ये फुल टेक्स्ट है। सो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, कंटेंट। सो अभी आप देखेंगे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, ओके, विघ्नेश वर्णमोहन, मैं लॉग्ड इन हूँ, इसलिए मुझे ये दोनों टैब्स दिख रहे हैं। सपोज मैंने लॉग्ड इन नहीं है, फिर इधर दिखेगा लॉग इन टू व्यू कंटेंट। सो सपोज आप लॉग्ड इन है, फिर आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ये सारा कंटेंट डाउनलोड करके आपके मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आपके सिस्टम पे आ जाएगा। सो इसको आप एजुकेशनल पर्पस के लिए फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सपोज मैंने पहले बताया आपने लॉग्ड इन नहीं है, उस रिसोर्स पे आप क्लिक करेंगे, इधर आएगा लॉग इन टू व्यू दिस कंटेंट। सो इसको आपको सपोज आप लॉग इन टू व्यू कंटेंट पे क्लिक करेंगे, सपोज आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फिर आप सिर्फ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। सपोज आपने अपना पासवर्ड भूल गए, फिर आपको क्या करना है, एक अकाउंट रिकवरी करके एक बटन है,
उस पर क्लिक करेंगे, अब वहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, आपके मेल पे एक दोबारा पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सपोज आपने कभी भी रजिस्टर नहीं किया है, फिर आपको क्या करना है, इधर जाके रजिस्टर करके रिटर्न बटन पे दबाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, वो भरा सारा भर के उसमें बेसिकली आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, फिर आप इस पर एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उस पर आप वेरीफाई करेंगे, फिर आपको इधर आके मेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 मिनट का काम है, मैक्सिमम 5 मिनट्स, सारा काम आप खत्म कर सकते हैं, फिर आप इसको लाइफ लॉन्ग फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये वीडियो लेक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही वीडियो लेक्चर्स आपको सिस्टम पे दिखेगा। सो मैंने आपको बताया मेन फिल्टर्स क्या क्या है। इंडिया यूज़ करने का सिर्फ 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला, कैसे सर्च टॉपिक आप चूज़ करेंगे, आपको सही सर्च टॉपिक, सर्च कीवर्ड सही से पकड़ना है और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है। और दूसरा है क्या फिल्टर, कैसे फिल्टर्स अप्लाई करना है ताकि आपको आपके रिजल्ट्स को नैरो डाउन करके लेके आ सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फिल्टर्स अभी हम देखेंगे। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन करके एक फिल्टर है, उस पर ओपन आप और NDLA पे आप क्लिक करेंगे, आपको फुल टेक्स्ट सारा, ओनली सारा किताब और सारा आर्टिकल आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो रिसोर्स मिलेगा। और दूसरा है ऑथर। सो आप एक सर्च कीवर्ड डालेंगे, उस पर आप देखेंगे कितने भी आपके रिलेवेंट ऑथर्स हैं, उस पर चूज़ करेंगे, उन ऑथर का आपको रिसोर्स मिल जाएगा। और सब्जेक्ट कैटेगरी, सो इधर आप किस आपके टॉपिक किस सब्जेक्ट के अंदर, सपोज सोशल साइंसेस में आता है, सो सिर्फ जाके सोशल साइंस पे क्लिक कीजिएगा। सपोज लैंग्वेज और लिटरेचर पे आता है, ये दोनों पे क्लिक कीजिएगा। सो सब्जेक्ट कैटेगरी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, और लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग रिसोर्स टाइप, आप सपोज सिर्फ ऑडियो बुक्स चाहिए, ऑडियो बुक्स में क्लिक कीजिएगा। सिर्फ बुक्स चाहिए, बुक टाइप करके आप उसमें क्लिक करेंगे, सिर्फ बुक आएगा। सपोज थीसिस चाहिए, सिर्फ इधर जाके थीसिस टाइप करके उस पर चूज़ करेंगे, आपको थीसिस मिल जाएगा। और ये लर्निंग रिसोर्स टैब है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट फिल्टर है सोर्स। मैंने आपको पहले बताया देयर आर 251 कंटेंट पार्टनर्स विद अस। सपोज आपको सिर्फ थीसिस चाहिए, सो इधर जाके आप inflibnet-शोधगंगा टाइप करेंगे, आपको सारा थीसिस, इंडिया में कितने भी थीसिस अभी तक डिजिटाइज करके अपलोड किया हुआ है, सारा थीसिस आपके सामने आ जाएगा। और लास्ट फिल्टर है राइट हैंड साइड पे, आपको ये फिल्टर मिलेगा कंटेंट टाइप। सो आप सर्च करने के बाद सपोज आपको सिर्फ टेक्स्ट और प्रेजेंटेशन चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ टेक्स्ट और प्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको एक्सेस ऑप्शन के बारे में पहले बता दिया। और आप NDLA को अपनी लैंग्वेज पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, होम पेज में जाके आप लैंग्वेज करके ऊपर एक नीचे ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, उस पर दबाएंगे, आपको कितने भी लैंग्वेजेस इस इंटरफेस में ट्रांसलेट करके सकते हैं, वो सब चीज़ आ जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ा, मराठी, तमिल, ये सब चीज़ में आप अपना इंटरफेस को चेंज करके पढ़ सकते हैं। और यंग जनरेशन के लिए हमने NDLA को मोबाइल ऐप्स में भी बना के लॉन्च किया हुआ है। एंड्रॉयड एज वेल एज iOS दोनों में भी NDLA मोबाइल ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ NDLA एंड्रॉयड ऐप को कैसे यूज़ करना है। सो ये NDLA का एंड्रॉयड ऐप का होम स्क्रीन है। सो इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सर्च करना है। सपोज मैंने इस पे उत्तर प्रदेश करके एक टॉपिक सर्च करना है, फिर ऊपर एक आइकॉन है, सर्च आइकॉन है, इस पे दबाएंगे, फिर नीचे ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। सो इधर जाके आप अपना सर्च टॉपिक डालेंगे, आपको सारा रिसोर्स, कितने भी रिसोर्स इस टॉपिक में है, ये दिखेगा। सपोज इसमें आप फिल्टर करना है, सो वहाँ पे तो डेस्कटॉप में आपको लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में फिल्टर्स हैं, लेकिन मोबाइल ऐप में आपको फिल्टर का आइकॉन वैसे ही दिखेगा, ऑरेंज कलर में वैसे ही फिल्टर मिलेगा। इस पे आप दबाएंगे, ऊपर आपको सारा फिल्टर्स, हमने डेस्कटॉप में कितने भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कितने भी फिल्टर्स देखे हैं, वो सारा इधर आ जाएगा। सो इस पे आप स्क्रॉल करेंगे, इस पे आप खींचते जाएंगे, आपको और फिल्टर्स दिख जाएगा। सपोज मैंने सिर्फ सोर्स में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सारा रिसोर्स चाहिए ऑन द टॉपिक ऑफ उत्तर प्रदेश, सो मैं क्लिक किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अप्लाई किया हुआ है, फिर मुझे
रिसोर्स मिल गया 192 199। सो वैसे ही आपको मोबाइल फ़ोन पे एंड्रॉयड ऐप पे आप NDLA को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं एक एक्टिविटी आप सबको देने वाला हूँ। सो 5 मिनट का एक्टिविटी है। सो इस पे आप सब अपना मोबाइल फ़ोन से, प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर और आई स्टोर में तो आई स्टोर, प्ले स्टोर में जाके NDLA का मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे। उस ऐप को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप अपने कितने भी ये हैं क्या कहते हैं टॉपिक है, टॉपिक आपको चाहिए और थीसिस आप सर्च करना चाहते हैं, आपका रिसर्च टॉपिक है, आपका क्लास कोर्स वर्क का टॉपिक है, वो सर्च करेंगे, वो आप डाल सकते हैं। ओके, वो सर्च करके मुझे आप बताएंगे आपने NDLA आपको इंस्टॉल किया है कि नहीं और ये रिसोर्सेज आपको यूजफुल रहेगा कि नहीं। आप मुझे चैट मैसेज पे डालिएगा। अभी आपके पास 5 मिनट है, अभी 12:10 बज रहा है। आप 12:15 को हम सेशन दोबारा मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा। आप ये 5 मिनट आप सब अपना मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करके मुझे बताइएगा। आप सब ऑनलाइन में रहिएगा, जाने का ज़रूरत नहीं है। आप अभी चेक करके मुझे बताइएगा। सो उस समय तक मैं अपना वीडियो और ऑडियो म्यूट करके रखता हूँ। 5 मिनट। सपोज आप NDLA ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो सिर्फ आप मुझे चैट पे एक मैसेज डाल दीजिएगा डाउनलोडेड। और सपोज ये यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे सर्च करके यूज़फुल है तो यूज़फुल करके डाल दीजिएगा, नहीं यूज़फुल है तो आप मुझे क्यों नहीं यूज़फुल उसका रीज़न भी डाल दीजिएगा। शुभेंद्र कुमार जी आपने डाउनलोड कर दिया है, थैंक यू। रॉबिन बलियान जी आपने भी डाउनलोड किया है, गुड। रंजय कुमार पटेल जी आपने भी किया हुआ है। विकी जयसवाल डाउनलोडेड, NDLA डाउनलोडेड, गुड।
अतुल कुमार जी ने भी किया हुआ है। सुप्रिया सिंह जी downloaded sir, try to register, okay good. Avniya Kumar, useful, yes sir, downloaded and it's useful too, thank you. Chandan Veer downloaded, yes good. Moto G Play downloaded, Shanu Kumar ji very good, thank you. Gautam Jain downloaded, useful. Priya Singh downloaded, Adi Yogi downloaded, already downloaded, very good. Medha Gupta, Priya Singh useful. Shekhar Harith downloaded, okay very good. सो अब आप एक बार सर्च कीजिएगा अपना टॉपिक, रेलेवेंट टॉपिक को सर्च करके देखिए आप ये ऐप यूज़फुल है कि नहीं और इसमें कितने रिसोर्सेस आपको मुझे याद है अब तक हम पढ़ रहे थे, मैं 2000 से 2012 तक ACIT MA MPhil PhD सब चीज़ 12 साल किया हुआ है। इन 12 साल में हमें मैक्सिमम रिसोर्सेस फ़ोटोकॉपी करना पड़ता था। फ़ोटोकॉपी उस समय हर सब्जेक्ट के लिए लगभग 1000 रुपये के आसपास हमें सिर्फ फ़ोटोकॉपी में खर्च करना पड़ता। लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 5000 से लेके 6000 तक हमें खर्च करना पड़ता था सिर्फ फ़ोटोकॉपी में। लेकिन आज आप सबके पास वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फ़ोन है और इसमें NDLA ऐप है। आप सारा रिसोर्सेस अपने मोबाइल फ़ोन पे सिर्फ एक बार रजिस्टर करके आप फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप हमारे समय पे नहीं है और मुझे सिर्फ मेरा रिसर्च टॉपिक को कितने टॉपिक्स थीसिस अवेलेबल हैं वो ढूंढने में मुझे लगभग 2 साल लगाया। सिर्फ लिटरेचर रिव्यू देखने में मुझे सिर्फ 2 साल, वो भी सिर्फ मेरे यूनिवर्सिटी में कितने भी मेरे टॉपिक में थीसिस सबमिट किया है वो देखने में। अभी आपके पास 6 लाख थीसिस अवेलेबल हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं आपके इंटरेस्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में कितने थीसिस अवेलेबल हैं और उसमें से आप कितना आपका टॉपिक और कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं और कैसे और रिसर्च कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपके हाथ में, सिर्फ 2 दिन में आप ढूंढेंगे आपका सारा थीसिस आपके टॉपिक में मिल जाएगा। ये मोबाइल ऐप का एक मेजर फ़ायदा है। अभी हम सेशन शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आपके पास ये दिखेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं दोबारा प्रेजेंटेशन चालू करने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन दिख रही है? Can you see the presentation? ओके, मैं अभी प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग आज के समय पे हम मैक्सिमम गूगल ही यूज़ करते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करना हो हम गूगल यूज़ करते हैं। और गूगल और NDLA का कोई कंपटीशन नहीं है, हम गूगल से कंपेयर करेंगे, काफ़ी छोटा सा इनिशिएटिव है लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंसेस हैं गूगल और NDLA का, वो अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अभी आप देखिएगा, 2 बच्चे हैं, एक तो पायल करके एक लड़की है, वो 8वीं पढ़ रही है और वो हिंदी मीडियम का ही है और वो एक टॉपिक फिजिक्स में एक टॉपिक सर्च करना चाहती है मैग्नेटिज्म के टॉपिक के ऊपर। और शमिक करके एक लड़का है, वो PhD करना चाहता है मैग्नेटिज्म के ऊपर। दोनों बच्चे गूगल के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सर्च कर रहे हैं मैग्नेटिज्म करके। दोनों को सेम रिजल्ट आया हुआ है, 2.49 करोड़ रिसोर्सेस।
ओके, और दोनों ने आए NDLA में सर्च किया मैग्नेटिज्म, दोनों को रिजल्ट्स मिला है 4.19 लाख। और दोनों ने क्या किया है, पायल और शमीक, पायल ने एजुकेशन लेवल में जाके 5th to 8th स्टैंडर्ड चूज की और लैंग्वेज हिंदी चूज की, उसको मिला है 56 रिजल्ट्स। और शमीक ने क्या किया है, सिर्फ करियर और टेक्निकल पेपर चूज किया है, उसको मिला है 219 रिजल्ट्स। सो अभी आप कंपेयर कर सकते हैं, गूगल में आपको मिला है 2.49, तो इधर मिला है 219। सो ये काफ़ी डिफरेंस है। सो अभी हम देखते हैं मेजर डिफरेंस क्या क्या है। सो गूगल इज अ ब्रिलियंट जायंट, उसके सामने तो कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। लेकिन गूगल क्या करती है, सपोज आप एक टॉपिक सर्च करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म के टॉपिक लेते हैं, मैग्नेटिज्म करके, सो गूगल को वर्ल्ड वाइड वेब में कितने भी वेबसाइट में ये टर्म मिलता है मैग्नेटिज्म, वो सारा टॉपिक को निकाल के आपके पास लेके आ जाता है। ओके, सो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है ये रिलेवेंट रिसोर्स है कि नहीं, ये सही ऑथेंटिक रिसोर्स है कि अनऑथेंटिक रिसोर्स से आ रहा है, ये फेक है कि रियल, और ये रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट। ठीक है, सो कितने भी कहीं पे भी, सो वहाँ से ये रिजल्ट्स लेके आ जाती है। लेकिन NDLA में हम मैक्सिमम पार्टनर्स के थ्रू काम करते हैं, सारा पार्टनर्स एक रिलेवेंट वैलिडेटेड एजुकेशनल कंटेंट पार्टनर्स हैं, और हम सारा कंटेंट को क्यूरेट करके अपने डेटाबेस में लेके आते हैं। सो सारा एजुकेशनल कंटेंट है, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ओनली, और गूगल के पास नॉन एजुकेशनल कंटेंट भी हो सकता है। और हम अपने सिस्टम के थ्रू सर्चेस को और नैरो डाउन कर सकते हैं बाई अप्लाइंग फिल्टर्स, गूगल में वो नहीं हो सकता है। और गूगल नेशनल लाइसेंसिंग नहीं करता है, हम सरकार MHRD ने नेशनल लाइसेंस खरीद के उसको सारे इंडियन सिटीजन्स को कुछ रिसोर्सेज को फ्री ऑफ कास्ट में दे रहे हैं। ये मेजर डिफरेंस है गूगल और NDLA के बीच में। और हम बिग पिक्चर देखते हैं, सो आपने ऑलरेडी सुना होगा स्वयं प्रभा, ज्ञान, NPTEL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये सारे एक कोलैबोरेटेड वर्चुअल ऑनलाइन लर्निंग मैकेनिज्म है। सो ऑलरेडी एक ऑप्शन भी है आपके पास, NPTEL और स्वयं पे आप कोई भी कोर्स करेंगे उसमें से आप 20 क्रेडिट अपने कोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो फ्यूचर में कोई भी बच्चा अपना डिग्री करना चाहता है, वो अपने घर में बैठ के मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप और लैपटॉप संभाल के उस पर सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, स्कूल डिग्री हो, UG और PG हो, उसके थ्रू कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है NDLA क्लब करके। ये NDLA क्लब आप अपने यूनिवर्सिटी में भी शुरू कर सकते हैं। सो अभी इसमें देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NDLA क्लब इज टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रीडिंग। सो आज के ज़माने पे ये रीडिंग का कल्चर काफ़ी कम होते जा रहा है। सो इसको वापस लेके आने के लिए हमने सोचा था एक सोशली हमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रीडिंग के लिए भी एक अलग से एक क्लब बना के उसके थ्रू हम रीडिंग को वापस लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्लब मेंबर्स को पहले ढूंढना है। उसके लिए आपको हर क्लास में से एक बच्चा और हर डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी मेंबर को आइडेंटिफाई करके, लाइब्रेरियन एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इन लिस्ट को आप बना के अप्रूव करके फिर आपको NDLA क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से फॉर्म है। सो ये मैं आपको अपने लाइब्रेरियन साहब को आप बता दीजिएगा। आई थिंक Mr. Robin is here. He may be able to take it forward. So मैं आपको अभी बता देता हूँ इंडिविजुअली कैसे इस पे रजिस्टर करना है। सो आपको होम पेज में, NDLA के होम पेज पे राइट बॉटम कॉर्नर इधर रजिस्टर करके एक आइकन दिखेगा। तो इस पे आपको आप क्लिक करेंगे, ये पेज रजिस्ट्रेशन पेज आपको खुल जाएगा। सो इस पे आपको 4 डिटेल्स मैंडेटरी हैं, आपका पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये 7 चीज़, ये लाल वाला स्टार लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है। ये सब चीज़ फिल करके आप नीचे जाके सबमिट कर देंगे, आपके ईमेल पे एक
वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिर्फ 5 मिनट लगता है आपको ये रजिस्ट्रेशन करके यूज़ करने में। सो ये फर्स्ट आप सारे बच्चे को आप एक्टिवेट करेंगे। और दूसरा है, हर महीने आपको एक रीडिंग रिलेटेड एक्टिविटी आपके इंस्टीट्यूट पे करना है। सो ये एक्टिविटी हो सकता है, एक लेक्चर सीरीज हो सकता है, एक क्विज कंपटीशन हो सकता है, एक स्टोरी टेलिंग सेशन हो सकता है, एक गो फिश करके एक्टिविटी हो सकता है, एक फिल्म स्क्रीनिंग हो सकता है, एक ड्राइंग कंपटीशन हो सकता है, एक रोल प्ले हो सकता है, एक राइटिंग कंपटीशन हो सकता है, एक मेकर स्पेस का एक्टिविटी हो सकता है, एक डिबेट कंपटीशन हो सकता है। सो ये सारा एक्टिविटीज आप NDLA क्लब के अंदर आप कर सकते हैं। ओके, सो ये सारा कुछ इमेजेस हैं हमारे NDLA क्लब्स एक्टिविटीज करते हैं, उसका कुछ एक्टिविटीज का पिक्चर्स हैं। सो इसके अलावा हम बेस्ट परफॉर्मिंग NDLA क्लब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे हम सूटेबली रिवार्ड भी करेंगे। और अभी हमने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया हुआ है, रीडिंग ओलंपियाड करके। सो हर डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट लेवल रीडिंग ओलंपियाड, स्टेट लेवल कितने भी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विन करेंगे उनको स्टेट लेवल पे आके आएंगे, स्टेट लेवल बच्चों को हम नेशनल लेवल पे लेके आएंगे। ये हमने अभी प्लान किया हुआ है। So this is what is all about NDLA. This is what I wanted to share with you about NDLA. And if you have any questions, I'm happy to answer. So kindly ask the questions using the chat window. That would be easier to manage. So kindly chat your put your questions in the chat, and then I will respond one by one. कोई question? How to participate in NDLA clubs? So ये तो आप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही आप कर सकते हैं। सो NDLA क्लब से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं ना, ये तो आपके लाइब्रेरी से ये कर सकते हैं। सो नेशनल लेवल पे अभी हम वैसे अलग से कंडक्ट नहीं करते हैं, आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको करना पड़ेगा। UCOM-BDT after meet how to connect you. So I will give you my email ID vigneshjnu@gmail.com or vignesh@ndl.gov.in। सो दोनों ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी इधर चैट में डाला हुआ है। सो आप उस पर कोई भी ईमेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के साथ। कोई और क्वेश्चन नहीं है? Okay, agriculture science comes in which streams are? Okay, it may come in social sciences. Okay, suppose if it's related to some agriculture technology, it may come under technology also. So it depends on the topic. You can check in the agriculture social science as well as under technology, and so it depends, the topic depends on multiple things. What does orange lock mean? It will open or not? So orange lock करके कोई ऑप्शन नहीं है। Lenovo G6. How to get degree PG level on this app? See, PG level आप वहाँ पे एजुकेशनल लेवल पे UG एंड PG क्लिक करेंगे, फिर आपको UG PG का कंटेंट मिल जाएगा। ऑरेंज लॉक अभी तक हमने देखा नहीं है। Lenovo K6 पावर ऑरेंज लॉक मैंने देखा नहीं है। सो सपोज ओपन लॉक, ग्रीन कलर ओपन लॉक मिलेगा तो इसको आप फुल टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। After use this app, if you face any problem, we'll connect with you through your mobile. Yeah, fine. If you have any problem, kindly write an email to me, so I will respond to your emails. कोई और questions?
Okay, so if there are no more questions, then we will end this session. And I would like to thank each one of you for participating here. And I thank Professor Chowdhury and Mr. Robin for organizing this meeting and interaction with you. And I once again thank each one of you for your kind support. And Mr. Robin, do you want to say something? I'm trying to unmute your mic. Yes. So I have unmuted your mic, but I don't know for strange reason it's not unmuting. So I'm unmuting everyone. So Mr. Robin, you can unmute your mic by yourself. Mr. Robin. हेलो हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ. सर धन्यवाद सर. Thank you. Thank you so much. So can we end the meeting? जी 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 सर जी सर. Okay. Thank you so much. धन्यवाद, सबको धन्यवाद. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आभार. Okay. Thank you. Bye. Take care. Thank you sir.